Hi guys, welcome to my channel. So I hope you all are doing fun, you all are amazing, and this video is about me speaking for around an hour or more. I'm kidding. So basically I posted a story the other day wherein I asked you guys to ask me whatever you have to, और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा related to Germany, so I thought why not make a video out of it. So here I am making the video after a week, I guess. But yeah, सो बेसिकली मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ यहाँ पे. आई एंड माई हस्बैंड आर हियर इन जर्मनी इन बर्लिन एंड वी बोथ आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा. He is pursuing MBA in finance and I am pursuing MSc in project management as of now. So this is what we are doing here. Basically we wanted to come here together. This was one of the questions, that why did you guys um, go, like why didn't you guys go together? So the answer is, actually the thing was, I wanted to attend a wedding back in India, of my dearest person, and I couldn't come here early, as and we didn't plan it. We didn't think that it'd be such a barrier, or it'll take so long for me to come here, because we thought मतलब कि 2 महीने का ही long distance होना होगा and then I'll be here. That's what we planned. But like, life happens and I was not here. I couldn't. So basically I started with opportunity card. So opportunity card is like, जब आपने पढ़ाई कर ली और आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आ रहे हो. तो मुझे और नहीं पढ़ना था भाई, मेरा हो गया था पढ़ाई से. मैंने 2 डिग्री कर ली थी, BBA और MBA, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. आई डेंट वॉन्ट टू स्टडी मोर. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड से जाऊँगी. But opportunity card had a long waiting list. But even then I was in that list for around 2 months, thinking कि अब तो आ ही जाएगा भाई. फिर नहीं आया मेरा वेटिंग लिस्ट से, तो मैंने अपना नाम उस लिस्ट से विड्रॉ कर लिया, बिकॉज सागर वॉज ऑलरेडी हियर बाय देन. तो वो मैंने विड्रॉ करा लिया. फिर मैंने सोचा कि सेकंड ऑप्शन है डिपेंडेंट वीज़ा. मुझे बहुत लोगों ने बोला ट्राई फॉर डिपेंडेंट वीज़ा. आई वाज लाइक ठीक है, व्हाई नॉट, गिव इट अ शॉट. So I applied for it, but then they had their different protocols and requirements. They wanted me to submit A1 language certificate basically, but again, that was, that didn't work out for me, I would say, because I was not mentally prepared to study for, to study German and give the exam. B, there was no date as well. The exam dates, we have to book the slots way prior. So I couldn't even get the get the date for that test. So again I had to withdraw myself from that particular application. So I withdrew, and then I was left with a tourist visa or a student visa. So I was like ठीक है, एक बार tourist visa का try कर लेती हूँ. So at least 3 months का एक बार लगेगा, and then probably we'll find another solution. तो टूरिस्ट वीज़ा में भी there are two things, family reunion and there is another thing for long term visa. तो हमने इसमें फैमिली रीयूनियन डाला, थिंकिंग इन माइंड कि मेरा हस्बैंड है तो दिल अलाओ. बट बिकॉज मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी थी, तब तक मैंने विड्रॉ नहीं की थी डिपेंडेंट वाली. सो दे रिजेक्टेड. सो दे रिजेक्टेड माई टूरिस्ट वीज़ा. डिपेंडेंट वीज़ा मैं विड्रॉ करने का सोच रही थी, बिकॉज मैं से A1 नहीं हो पाती, एंड देर वर अदर प्रोटोकॉल्स इज वेल. अपॉर्चुनिटी कार्ड की अलग वेटिंग थी, तो आई वॉज लेफ्ट विद स्टूडेंट वीज़ा. लाइफ वॉज लाइक हाई देयर.
So basically, then I was left with no option to apply for for a student visa. But student visa में earlier I wanted to get into a public university, बट बिकॉज हमारे पास टाइम का बहुत इशू था, सो आई अप्लाइड फॉर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी which I am studying in which I am studying right now. So I applied for a university here in, मतलब अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी करती तो वो इस साल के सितंबर में जाके होता, बट आई वांटेड टू बी हियर एज अर्ली एज आई कुड, बिकॉज मतलब अक्टूबर पूरा अक्टूबर एंड पूरा नवंबर ही वाज हियर, वी वर इन लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अबाउट 2 months. उसके बाद नवंबर में सागर केम टू इंडिया, सो फॉर्चुनेटली वी हैड 2 months टुगेदर बिकॉज उसकी कोई तो वेकेशंस थी यहाँ पे. एंड देन he again came here in February. So we were again in a long distance for about 2 months because I came here on 7th of April. So so the story is not as simple as I'm making it look like, or I'm sounding maybe. फिर मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, बट जर्मन एम्बेसी को लगा कि इसी टाइम पे ना हमें अपने रूल्स बदल देने चाहिए, क्योंकि रिया को जाना है उधर. दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कि रिया को अब अपने पति के पास जाना है बिकॉज इनका लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, और अभी तक तो इसको पढ़ना भी नहीं था, अब इसको पढ़ना है तो क्यों ना इसको रोक दें यहीं कि तू जाके दिखा. दैट्स व्हाट हैपेंड. स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस इतना ज़्यादा डिले हो गया. ऑनेस्टली वैसे सबके लग जाते हैं 6 months, कोई लकी होता है, जैसे सागर का विद इन 1 month हो गया था, बट टच वुड. बट ऐसे फॉर्चुनेट केसेस हर किसी के साथ नहीं होते हैं. एंड मी बीइंग अ जेमिनी एंड एन एक्वेरियस असेंडेंट, कैसे मेरी लाइफ ईजी होएगी. तो हॉल्ट आ गया फॉर अराउंड 2 months. कोई कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. VFS को कॉल कर रहे तो वो कह रहे हैं जर्मन एम्बेसी बताएगी, जर्मन एम्बेसी में कॉल करे तो दिल लाइक विल टेल यू, विल मेल, वट एवर. सो देर वॉज अ ब्रेक ऑफ अराउंड 2 months. 2 months के बाद फाइनली हमें पता चला कि उनका कोई नया प्रोसेस आ गया है, जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा ईजी प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू देम, और वैसे है भी बट उस टाइम पे नहीं लग रहा था. तो अब क्या करना होता है, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेके जाते थे. अगर आप के पास APS है तो आप सीधा VFS पे जाओगे, अगर आपके पास APS नहीं है तो आप जर्मन एम्बेसी में जाओगे. ऐसे 2 रूल्स थे, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाओगे, वहीं आपकी बेइज्जती होगी, वहीं आपको बोल देंगे कि नहीं है डॉक्यूमेंट, फिर आप घर कॉल करोगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट दे दो, और ये सारा सीन मचेगा. फैमिली शो, सारा सीन मचेगा बढ़िया तरीके से. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सारे प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा आई वुड से ऑर्गेनाइज करते हैं. आई थिंक ऑर्गेनाइज इज द राइट वर्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट दे डिड, एंड आई थिंक वो ऑर्गेनाइज ही था. तो अब आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. दे विल टेक देयर ओन गाला टाइम, विच इज़ I think turnaround time is around a week, or around 7 days to 15 days depending on the city, or you are applying from, not for, from, obviously. So I think Delhi का थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, बट बैंगलोर और मुंबई के लोगों को मिल रहा था मेरे टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दिल्ली से कर रही थी ना यार, मुझे वहाँ से करना चाहिए था, तो फिर वहाँ लोगों को नहीं मिलता. एंड मतलब आप टूरिस्ट वीज़ा तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिख रहा है कि मुंबई की डेट पहले मिल रही है टूरिस्ट वीज़ा में, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए मुंबई से अप्लाई कर सकती हूँ. लेकिन मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जहाँ से इंसान बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, आपको वहीं से ही आप बुक कर सकते हो. सो अगेन मैं बुक कर रही थी, तो मुझे डेट ही नहीं मिल रही थी भाई. मतलब आपका फर्स्ट स्टेप था कि चेंज हो गया है, तो आप पोर्टल का वेट, खुलने का वेट करो. पोर्टल उन्होंने खोला, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स डाले. दे टुक अराउंड, एक्चुअली या मेरा तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने वेरीफाई कर दिया. तो मुझे लगा वाह, अब तो वेरीफाई हो गया, अब तो मुझे सिर्फ डेट लेनी है. फिर बाकी लोगों का अराउंड 1 वीक लग रहा था, किसी का 10 days लग रहा था. आई वाज लाइक थैंक गॉड मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी हो रही है. सो नाउ आई एम गोना गेट द डेट सून. बट अगेन इट वाज मी.
मेरा हो रहा था, ऐसे कैसे जल्दी हो जाता? सो देन व्हाट हैपेंड, मैंने उस पोर्टल पे मैं गई, मैंने अपनी डेट्स चेक की, कोई डेट नहीं आई भाई। हफ्ता निकल गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरी डेट नहीं मिल रही है भाई, मेरी डेट ही नहीं आ रही है। उसके बाद मैं दिन रात चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ, सागर वहाँ मतलब यहाँ से चेक कर रहा है, जर्मनी से, मैं इंडिया से चेक कर रही हूँ। हमने 4-5 आईडीज बना ली है भाई कि किसी आईडी पे तो दिखेगा, बट नहीं दिखा हमें। हम आफ्टर 21 डेज और लाइक 21 to 25 डेज का गैप लगा मेरे डेट मिलने में, मुझे एक डेट मिल गई एंड दैट वाज लाइक, इट वाज सच अ ब्लेसिंग। सो वी फेल्ट लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग। तो हमें डेट मिल गई, ठीक है, हो गया। उसके बाद जिस दिन डेट थी उस दिन मैं गई, उन्होंने मुझसे, भाई किसी भी इंसान से मैं पूछ रही हूँ कि तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था, एंड देयर लाइक नहीं हमारा तो नहीं हुआ, बट मेरा इंटरव्यू हुआ है। जर्मन एम्बेसी में एक तो पहले ही मेरी इतनी गंदी हुई हुई है क्योंकि मेरा हर चीज़ रिजेक्ट हो चुकी है, मेरे पास सिर्फ एक यही स्टूडेंट वीज़ा है, और मेरे से पहले मतलब उन लोगों ने पता नहीं क्या अपना ऑर्गेनाइज्ड तरीका उन लोगों को लग रहा था कि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा देते हैं, उसके बाद एक एक करके दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। भाई मुझसे पहले एक सरदार था, नो ऑफेंस, आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल, कि मुझसे पहले एक सरदार था और उससे क्वेश्चंस पूछे, भाई उसको कुछ नहीं आता था। और मेरी किस्मत, मुझे उसी के पास जाना था जो बंदी उस सरदार से क्वेश्चंस पूछ रही थी। भाई उसको कुछ नहीं आता था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसने मुझे बिठाया और वो मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शी आस्क्ड मी अबाउट माई सब्जेक्ट्स ऑफ माई पास्ट स्टडीज़, मतलब वो मुझसे बीबीए और एमबीए के सब्जेक्ट्स पूछ रही थी। एंड आई वॉज लाइक, मेरे बीबीए को किए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं, 3 से भी ज़्यादा हो गए थे आई गेस। मैंने 2020 में की थी और मैं 22 में बैठी हुई थी, तो हाँ वैसे एक्चुअली 22 भी नहीं, 24, हाँ तो हो गए थे भाई 4 साल। मैं सब्जेक्ट कैसे बताऊँ, एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सेमेस्टर थे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। भाई मुझे लगा मेरा नहीं होगा ये भी, एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँगी अब, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी देयर, एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्यों रुकी यहाँ पे, मुझे नहीं रुकना चाहिए था वो 2 महीने भी। मैं शादी के लिए वापस आ जाती, बट एटलीस्ट मैं चली जाती है। एंड आई वॉज ब्लेमिंग माई सेल्फ, आई वॉज ब्लेमिंग एवरीबडी अराउंड मी फॉर सम रीज़न। एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे विद इन मतलब और जब आप इंटरव्यू या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं उसका टाइम 10 दिन का होता है, उसके बाद आपकी डेट आती है, तो आपका वीज़ा आने में भी अराउंड आपका मतलब डिपेंड करता है, किसी किसी को उन्होंने डेट, मतलब वो वहीं पे डेट बता रहे थे कि आप ना देख लेना। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने इंटरव्यू में बोला, उसको शायद थोड़ा अच्छा लगा, तो उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है, आप ना 5 दिन में आके अपना देख लेना, अगर आपको मिल जाता है तो, वरना यू विल हैव टू वेट। आई वाज लाइक ठीक है। जिस दिन हम गए आई वॉज फ्रीकिंग आउट, बिकॉज मेरे को उन्होंने ना एक स्लिप लिख के दी थी जिसपे उन्होंने डेट लिखी थी, एंड आई थॉट कि वो एक्चुअली मेरे साथ उन्होंने क्या किया, जिस दिन की उन्होंने मुझे डेट दी थी, विच वॉज 5th, नहीं आई थिंक 2 अप्रैल थी या 1 अप्रैल थी, ऐसी कोई डेट थी जिसमें डे थर्सडे पड़ रहा था, बट उन्होंने मतलब ऐसे कुछ तो उन्होंने सीन कर दिया था मेरे साथ। बट फिर क्या हुआ, मैं अब मेरे पास एकदम से नोटिफिकेशन आई दैट द जर्मन एम्बेसी हैज़ मेड अ डिसीजन एंड यू कैन पिक योर passport from the German embassy. So I went there with my mother-in-law and my father-in-law, and we three were like, I don't know if it has happened with you,
बट वो जो धक धक होती है ना, वी थ्री वर फीलिंग लिटरली दैट, बिकॉज दे न्यू दैट दिस वॉज माई लास्ट चांस, एंड इवन दे डिडंट नो कि वो मुझे बोलेंगे क्या अगर नहीं हुआ तो. And Sagar was freaking out here. So we four, like the four of us were literally like, you know, कि ये तो भाई. And we went there, and तो सागर ने मुझे बोला कि तू वीज़ा बाहर ही ला के देखियो, एंड आई वाज लाइक ठीक है. सो आई वेंट देयर. उधर फिर उन्होंने मेरा ढूंढा, बिकॉज आई लॉस्ट दैट स्लिप, यू नो, कि अभी मैं आपको बता रही थी कि मुझे वो स्लिप दी थी और मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो आई थ्रू इट अवे. उसके बाद मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला आपको वो स्लिप दी होगी ना, वो स्लिप दो हमें. तो मैंने बोला वो स्लिप मेरे पास नहीं है भाई, मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरे गलत लिखा हुआ था उन्होंने. तो दे वर लाइक देन यू शुड प्लीज़ वेट. एंड आई वाज लाइक कि शिट. और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, लाइक ऐसे गेट है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, एंड आई कुड सी स्टूडेंट्स कमिंग यू नो फ्रॉम द इनसाइड. और वो कुछ बहुत खुश होके आ रहे हैं बिकॉज उनका एक्सेप्ट हो गया, और बहुत बेचारे रिजेक्ट जिनका हुआ वो भी आ रहे हैं. सो आई वॉज लाइक, एंड दैट मेड मी इवन मोर नर्वस. आई वॉज फ्रिकिंग आउट, आई वॉज स्वेटिंग, एंड आई फेल्ट कि मुझे अभी एनजाइटी अटैक हो जाएगा, भाई प्लीज़ मेरे को जाने दो. उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर भेजा, एंड दे आस्क्ड मी कि आपके पासपोर्ट पे कौन से कलर की स्लिप लगाई थी. आई वाज लाइक येलो. And then she took around 45 minutes to find my passport, but then she finally found it. और उसके बाद मुझे जैसे ही पासपोर्ट मिला ना, तो उसमें 3-4 चीज़ें थी. एंड देन आई वाज लाइक शिट, इन्होंने शायद फिर मेरा रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज वो मुझे इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों पकड़ा रही है भाई, सिर्फ पासपोर्ट दो ना. बिकॉज सागर का मुझे याद है सिर्फ पासपोर्ट आया था, और वो भी घर आया था. तो भाई उसने मुझे 3-4 चीज़ें पकड़ा दी, एंड आई वाज लाइक शिट मैन, अब मेरा फिर रिजेक्ट हो गया है, मैं क्या करूँ. बट आई कुडंट ओपन इट बिकॉज हमें बाहर जाके सबके साथ करना था. एंड द मोमेंट आई वेंट आउट, एंड माई like Sagar was on a video call with my father-in-law, and my father was calling from home asking कि क्या चल रहा है, मिला नहीं मिला. So everybody was waiting for that moment कि इसको मिल जाए भाई. And then I came out, I opened it with my father-in-law, my mother-in-law, and my husband, of course. So we four were there, and as soon as I opened it, like I'm still shivering sharing that out, but I was so happy. The moment I saw that, I'm sorry. The moment I saw that stamp or that student visa, it felt like the best day of our lives. Everybody was so happy. We were like, thank God, bhai ho gaya. We were so happy that it felt like ki we have literally achieved everything, and this is it. We do not want anything more from life. And it felt like that, and we all cried. Actually, we hugged each other, we cried, and it felt like पता नहीं क्या milestone pass हुआ है, but we were very 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 happy. We felt on top of the moon. And then we called everybody at home, and we told them, and everybody was so happy. So yes, that is the story basically of how I came here. But like answering your other questions, कि पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है. सो बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा वैल्यू है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं. सो इफ़ यू आर somebody who's planning to come here, प्लीज़ डू योर रिसर्च, ट्राई टू फाइंड पब्लिक यूनिवर्सिटी. अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, सो पब्लिक यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पेड डिग्रीज है हो रही है. मतलब लाइक कि पहले जैसे TOM, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बट पहले जो TOM थी या एक दो और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी वो फ्री होती थी स्टूडेंट्स के लिए. बट नाउ उन लोगों ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पेड डिग्रीज कर रही है.
तो आप वैसी कोई डिग्री करना, वरना कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करना. आई नो जर्मनी इज़ नोन फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन, बट आई थिंक अगर आपको आगे जाके यहीं जॉब्स वगैरह देखनी है, या इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर फॉर अ लिटिल लॉन्गर, then plan to get into a really good private university. Avoid Berlin if you can, because now Berlin is filled with Indians and there are way less job opportunities. Third, learn German before coming here. पहले इनिशियली जर्मन मतलब पार्ट टाइम्स आपको मिल जाती थी इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश और अ लिटिल बिट ऑफ जर्मन, but now everybody is asking for at least a C1, मतलब C1 C2 ही मांग रहे हैं, एंड दैट इज़ देयर मिनिमम बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो. एक दो यूनिवर्सिटी एक दो जगह कंपनीज ही हैं जो आपको B1 B2 भी कह रही हैं, बट इट्स बेटर दैट यू नो कम हियर प्रिपेयर्ड. अपार्ट फ्रॉम इट आई फील जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप खुद भी देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर ओन. But if you need any help, just let me know, comment down below, and I'll probably guide you better. uh, Apart from it, I think I've pretty much covered everything. There was this another question that asked कि overall monthly expenses कितने होते हैं. So it varies. अगर आप private, yeah, so because we both are living together, so it's like it's सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो. हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसका प्राइस डिफरेंट होता है, प्राइवेट रूम का डिफरेंट होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1200 यूरोज़ में आपका सब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी करती है. इट्स अराउंड 14 to 15,000 every month they deducted. You need a block account for Germany, by the way. You need around 12 lakhs, and then every month we get around 897 or 900 depending on the bank that we choose, either Fintiba or दूसरा अकाउंट क्या है, आई हैव फॉरगॉटन, बट या दैट इज़ इट. दीज आर द बेसिक डिटेल्स. इफ यू वांट more details or anything specific, let me know in the comments down below. So yeah, that was my story. I think everything is worth it now. I am happy, I am content, I'm grateful, and yeah, that's about it. So guys, looking forward. See you in my next vlog. Till then, do not forget to like, share, subscribe to my channel, and comment down below. Bye. By the way, I'm loving my skin and my hair. Anyway, bye.